Like yeah, they are not here today. Maybe they are afraid that I might ask certain questions, but I won't. And actually, I just want to grab your attention by conducting this test so that I can have the sense of your understanding. But most of you even don't appear in the test, and they don't submit at all. So it was not like you will get certain amount of marks out of it, or it would impact your grade in any ways, but it was like for my understanding only. And because you are like most of you are very uninteractive during the session, so I sometimes do not feel like you are getting it or not. So that is why I tend to I prefer the way of the exam way, so that I can guess or I can sense key how much you are understanding. But never mind, I'll be like this only. So if from today onward, if you feel like you are not getting something, or you want me to repeat, or any concept you want to learn, you can ask me. Otherwise, I'll just run this course the way I'll feel good for me. Okay. Yeah. So for today, the topic of our discussion is business analysis techniques applied in Excel sheet. So there are various analysis techniques which we generally used in Excel. So this is the first analysis we have to use in Excel, which that is called trend analysis. So I'll also show you how you can do this trend analysis in Excel. But before that, I want you to understand. What trend analysis is. So from today onward, I'll try to build a conceptual framework for the topic we are discussing. Or if someone of you having problem with my language or English or something like this, so you can talk to me. I can also translate it and make you understand using Hindi, or Marathi to zyada aati nahi, otherwise I could have used that also. So not a problem. So we'll try to understand what is trend analysis. As the name itself suggests, ट्रेंड हम बोलते हैं ना कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो वो एक ट्रेंड इज बेसिकली अ पैटर्न एक्चुअली. So this is what it is. Trend analysis is a strategy used in making future predictions. तो trend analysis एक strategy होती है जिसको हम future prediction के लिए use करते हैं अपने historical data के basis पर. It allows to compare data points over a given period of time, identify upwards, downwards, and stagnation. So if we have like historical data with us, so what we can do, we can predict the future based on it. हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ ऐसे बहुत बेसिक एग्जाम्पल तुम लोग भी सोच सकते हो, अगर हम भी ले सकते हैं कि तुम अगर क्या एग्जाम्पल दूँ तुमको, चलो ठीक है, बहुत सिंपल ले लेते हैं कि अगर इफ यू आर गेटिंग पॉकेट मनी फ्रॉम योर फादर और फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो अगर एक साल में जो पॉकेट मनी तुमको मिली है, अगर हर महीने का तुम निकालोगे, तो यू कैन प्रिडिक्ट कि हाँ अगले साल भी मुझे कितना मिलने वाली है. तो अगर उसमें कुछ इंक्रीज हो रहा होगा तो हो सकता है और बढ़ जाए. अगर वो तो उसमें दो चीजें होंगी. तो ट्रेंड के हिसाब से, हाँ मतलब इसमें क्या होता है ना जनरली कि जब हम when we try to evaluate the historical data, or we try to make prediction based on the historical data, तो sometimes क्या एक साल में कई बार ऐसे कुछ महीने ऐसे होंगे जिसमें you will get मोर मनी, और कुछ महीने ऐसे होंगे इसमें तुमको कम पैसा मिलेगा. तो बेस्ड ऑन दैट जो हमारा ट्रेंड एनालिसिस होता है, ये तीन तरह से होता है. एक तो अप ट्रेंड्स होता है जिसमें कि मतलब वो ग्रो कर रहा होता है, इट विल इंक्रीज. तो तुम्हारा मतलब अगर हर महीने कुछ पैसा बढ़ रहा है, या आफ्टर 6 months तुमको लग रहा है कुछ पैसा इंक्रीज हो रहा है, तो इट विल हैव अप ट्रेंड्स. डाउन ट्रेंड्स होगा अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि कुछ महीने में पैसा कम मिलने लगा है उस तरीके से. और अगर बहुत फिक्स्ड होगा तो उसको हम स्टैग्नेशन बोलेंगे, जो कि वो एज इट इज रहेगा, जितना पास्ट में था उतना ही रहेगा. ठीक है. इफ अ ट्रेंड इज स्टेबल एंड स्टडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इंडिकेट्स कंसिस्टेंसी एंड इन्वोक्स मोर सर्टेनिटी देन अ ट्रेंड दैट इज ड्रास्टिकली चेंजिंग पोजीशन. तो जितना ट्रेंड
स्टेबल और ट्रेंडी होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि हर महीने एक मतलब एक स्पेसिफिक, अगर ग्रो कर रहा है तो एक स्पेसिफिक पेस से ग्रो कर रहा है, एंड इफ इट्स डिक्रीजिंग तो एक स्पेसिफिक पेस से डिक्रीज कर रहा है। तो ये दिखाता है कि कितना कंसिस्टेंसी है हमारे डेटा में, और इट इज मोर सर्टेनली देन अ ट्रेंड दैट इज ड्रेस्टिकली चेंजिंग। और ये अच्छा होता है उस उस चेंज उस ट्रेंड से जो कि बहुत ड्रास्टिकली, बहुत तेजी के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है। However, inconsistent trends might be more attractive to some investor who analyze certain external factors contributing to the radical trend change. High risk usually involves chances of high rewards. हाँ, तो कुछ लोगों के लिए जो जिसमें ये बहुत बड़ा चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस जो डेटा दिखा रहा होता है, तो उसके लिए उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि बिकॉज oh my god, not only 2% are there, my god. ठीक है, तो इफ अ ट्रेंड इज स्टेबल एंड स्टडी, हाँ, तो अगर कुछ कुछ लोगों के लिए जिसमें बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं अनसर्टेनिटी होती है, वो उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स को मतलब गेस करके दे कैन मेक मोर जुडिशियल डिसीजंस कि हाँ कहाँ पे ये पैसा बढ़ेगा बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, तो सबसे ज्यादा ट्रेंड एनालिसिस स्टॉक मार्केट में ही यूज होता है। तो हाई रिस्क यूजुअली इन्वॉल्व चांसेस ऑफ हाई रिवार्ड, तो फिर इसमें रिस्क भी ज्यादा होगा और तो रिवार्ड्स भी ज्यादा होगा, एज सिंपल एज दैट। Investors and business managers use this information to make data-driven decisions and improve strategies. तो जो investors होते हैं, the people who want to invest their money in stock markets or other forms of investments, और business managers जो होते हैं वो इस information को use करते हैं ताकि उनका जो मतलब डिसीजन हो वो डेटा ड्रिवन हो, मतलब वो बेस्ड ऑन अजम्पशन और परसेप्शन ना हो, बल्कि वो डेटा से निकाला हुआ डिसीजन हो, और जिससे वो उनकी स्ट्रेटेजीज को वो इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्रेंड एनालिसिस जैसा तुमको मैंने बताया ही था, अपवर्ड ट्रेंड बुल मार्केट में होता है, स्टॉक मार्केट अगर हम की बात करेंगे तो उसमें, एन अपवर्ड और एन अप ट्रेंड और अपवर्ड ट्रेंड मींस दैट योर डेटा पॉइंट्स आर इंक्रीजिंग। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि हमारे डेटा जो पॉइंट्स हैं वो दे आर इंक्रीजिंग बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल यू आर एग्जामिनिंग एंड फॉर एंड योर पर्पस। For instance, you are a business owner looking at the price of raw materials required to produce bread, एंड यू नोटिस दैट प्राइस इंक्रीजिंग। तुम लोग मतलब तुम्हारा एक बिजनेस है जिसमें तुमको ब्रेड बनाना है, तो तुम देख रहे हो कि क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल का प्राइस इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। दिस इंफॉर्मेशन कुड हेल्प यू मेक डिफरेंट प्रिडिक्शन, जिसके बेस पर तुम कुछ प्रिडिक्शंस बना सकते हो, सच एज इंक्रीज कॉस्ट ऑफ योर बिजनेस और द नेसेसिटी ऑफ रेजिंग द प्राइसेस फॉर द फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, तो उसके बेसिस पर तुमने कहा कि अगर हमारा जो है रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है तो व्हाट वी कैन डू, तो वी कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ आवर बिजनेस, का हम कॉस्ट इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि प्राइस ऑफ फाइनल प्राइसेस बढ़ा सकते हैं अपने जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं उनके लिए। At the same time, an investor looking at the share point of company X who noticed an upward trend might decide to buy the stock. किसी ने देखा कि यार इस कंपनी के स्टॉक जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं, अपवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, ही माइट डिसाइड टू बाय द स्टॉक, क्योंकि प्राइस जो है उसका बढ़ रहा है। एन अपवर्ड मूवमेंट इन द स्टॉक्स प्राइस जनरली इंडिकेट्स अ फेवरेबल कंडीशन। ये टिपिकली हमको दिखाता है कि अच्छा है, अगर किसी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं तो इट्स अ फेवरेबल कंडीशन फॉर अस, एंड इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन इफ द स्टॉक इज वर्थवाइल इन्वेस्टिंग और नॉट। तो इसके बेसिस पर we can judge whether to invest in that particular stock or not. ठीक है, and this is downward trend, this is bear market. A downward trend indicates the decreasing value of your variable, ये opposite है just upward का, downward ये वो ये bear market में जनरली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनीज प्रॉफिट इज अ शार्प डिक्लाइन, कंपनी का प्रॉफिट जो है बहुत तेजी से गिर रहा है, दिस में रिक्वायर इन्वेस्टर्स टू प्रोसीड विद कॉशन एज द स्टॉक इज रिस्की सिंस द प्राइस इज गोइंग डाउन। तो क्या है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट बहुत तेजी के साथ नीचे गिर रहा है तो इसमें इन्वेस्टर को बहुत जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि ये स्टॉक रिस्की हो सकता है क्योंकि उसका प्राइस जो है कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। दिस इज ऑल्सो अप्लाइज व्हेन अदर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वेरिएबल्स हैव अ डाउनवर्ड ट्रेंड्स। तो ये तो एक सिर्फ प्राइस की बात है, और भी चीजें हैं, अगर तो वन ऑफ द फैक्टर इज दिस है, और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसकी जो हमको डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स अगर हमारी डाउन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यूज हमारे डाउन हो रहे हैं,
कॉस्ट ऑफ गुड सोल डाउन हो रहा है, बहुत सारी चीजें। व्हेन इन्वेस्टर्स रिसर्च फाइनेंशियल एसेट्स, ट्रेंड एनालिसिस कैन बी डन ऑन द एसेट्स हिस्टोरिकल डेटा। अगर इन्वेस्टर जो है वो सर्च कर रहा है, फाइनेंशियल एसेट्स पे रिसर्च कर रहा है, देन ट्रेंड एनालिसिस किया जा सकता है कंपनी हिस्टोरिकल डेटा, एसेट्स के हिस्टोरिकल डेटा पे। इफ द प्राइस इज डिक्रीजिंग, अगर प्राइस गिर रहा है तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बेयरिश मार्केट, वो बता रहा है कि मार्केट बेयरिश है, यानी कि बेयर मार्केट है। In other words, investment is not recommended because the price could further decrease, leading to a loss. Or मतलब it can be infer out of this that it is not advisable to invest in that company because the price is decreasing, and it can also further decrease, and then eventually it can turn into some losses. ठीक है? And the third one is like horizontal trend. Finally, the horizontal trend indicate stagnation. Horizontal मतलब सीधा सीधा, stagnant है, वो चिपका हुआ है ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है. In other words, the prices or another metrics, prices या और भी कोई factor हैं, are not going up or down. Rather, they are stagnant. वो अपनी जगह पे थमा हुआ है. In practice, a flat trend might go up for one period, then pull a trend reversal. तो प्रैक्टिस में क्या होता है, अगर एक फ्लैट ट्रेंड चल रहा है, मतलब सीधा सीधा ट्रेंड चल रहा है, तो वो क्या होगा कि एक पीरियड के बाद ऊपर जा सकता है, then a pull trend reversal का opposite भी हो सकता है, reaching a steady general direction overall. Making investment decision based on horizontal trend is risky because you don't know what will happen. तो अगर कोई stagnant है तो हम we cannot assume कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. However, if you decide to go with it, a sophisticated revenue and cost analysis regarding the sales regions must be implemented to calculate the risk. ठीक है? तो मतलब we have to calculate it before investing into it. So continuing further. Now we'll understand what are the benefits of this trend analysis. It is easy to compare the performance of two or more firms over the same period of time. तो अगर हमको दो कंपनीज का अगर हमको कंपेयर करना है परफॉर्मेंस, तो हम ट्रेंड एनालिसिस के जरिए बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है? तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक अ बिजनेस इज कंपेयर टू द अनदर. तो कंपनी ए का अगर हमने निकाला स्टॉक प्राइस फॉर एग्जांपल ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 5 years, एंड कंपनी बी का निकाला, उनका हमने ट्रेंड एनालिसिस किया कैसे वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो वी कैन मेक अ जुडिशियल डिसीजन based on our analysis. Trend analysis can be used as a myriad of numerical data types, including traditional data. Traditional data तो हमारे पास जो प्रॉफिट और एक्सपेंसेस होते हैं. ऑल्टरनेटिव डेटा जो है वो वेबसाइट ट्रैफिक है, कितने लोग हमारी वेबसाइट को हिट कर रहे हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स कितनी आ रही हैं, पीओएस ट्रांजैक्शंस कितने हैं, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. तो इनमें से किसी भी चीज पर हम ट्रेंड एनालिसिस लगा सकते हैं. प्रॉफिट्स पर लगा सकते हैं, एक्सपेंसेस पर लगा सकते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक पर लगा सकते हैं, ब्ला ब्ला मोर किसी भी वेरिएबल पे लगा सकते हैं जिसका डेटा हिस्टोरिकल डेटा अगर हमारे पास है तो. Continuing further, data suggests you can use these long-term trends to identify actionable patterns. तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमको एक ट्रेंड पता चल जाएगा तो हम एक्शनेबल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और द पैटर्न्स कैन आफ्टरवर्ड बी यूज्ड टू मेक फोरकास्ट. तो उसके बेसिस पर हम अपने चीज़ों को फोरकास्ट कर सकते हैं. यू कैन यूज ट्रेंड एनालिसिस टू एग्जामिन प्रिलिमिनरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, और एग्जामिन द एंटायर स्टॉक मार्केट, और पूरी स्टॉक मार्केट को हम एग्जामिन कर सकते हैं या उसका हम ट्रेंड निकाल सकते हैं. Okay, so trend analysis ki this is the example. The figure below, this is the figure. If you can see it, this is the figure. ये है on desktop and mobile web in the last 6 months. तो ये October, November, December, January, February, March. ठीक है? This is the analysis. So what it is seeing, the figure below shows the total website traffic in the last 6 months for company A. ठीक है? तो ये कंपनी A है, इसका 6 महीने का ये गया है. 6 महीने का वेब ट्रैफिक है, कितने लोग आए. तो अक्टूबर में लाइक 250K के अराउंड थे, नवंबर में अराउंड 400K थे, दिसंबर में हाईएस्ट थे 1 million से भी ज़्यादा हो चुके थे. इस तरह से इट इज शोइंग वो. तो ये हमारा दिखा रहा है. तो फिगर बिलो शोज द टोटल वेबसाइट ट्रैफिक लास्ट 6 months फॉर अ कंपनी ए. कंपनी ए जो डील करती है, इट्स अ ऑनलाइन स्टोर फॉर गिफ्ट सेलिंग. ठीक है? तो डेटा सजेस्ट एन अप ट्रेंड ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन रीचिंग पीक 20 दिसंबर. तो क्या हो रहा है इसमें, देखो ये अपवर्ड दिखा रहा है. देखो यहाँ से चला, आगे बढ़ा, और यहाँ पे टॉप पे पहुंच गया, दिसंबर में पीक पर पहुंचा. ठीक है? तो पीक पे पहुंचा दिसंबर में, क्योंकि हॉलीडे सीजन था दिसंबर में, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, इसकी वजह से. आफ्टर द
there has, in other words, if you had a competing gift store, you could compare a performance on this company. Although intuitive, this example of trend analysis help you predict future results and performance. ठीक है, वो हम आगे एक और है वो दिखा देते हैं. तो यहाँ से अपवर्ड गया, यहाँ से फिर ये डाउनवर्ड आ गया, थोड़ा सा स्टेगनेंसी की तरफ है. फिर उसके बाद से अगर तुम लोग देखोगे तो हाँ. So this is like the figure below compares the share price of two companies, companies X and Y over 1 year. तो कंपनी X जो है वो ब्लू वाली है, excuse me, कंपनी X is this blue वाली and कंपनी Y is this yellow वाली. तो हम इसके बेसिस पर देखो कैसे जनवरी में डाउनवर्ड स्लोप आया, फिर अपवर्ड हुआ, फिर अपवर्ड हुआ, फिर डाउनवर्ड, इस तरह से लुकिंग एट इट वी कैन इन्फर कि हमको इस स्टॉक, किस कंपनी के स्टॉक्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर लाइक ट्रेंड एनालिसिस. नाउ इफ आई गो टू trend analysis exercise ki how we have to calculate the trend analysis. So trend analysis, this is the sheet. I hope or I guess this sheet is visible to you. Before that, I'll just see you the show you the data. So this is the data for you. I just increase the size to 12. ठीक है. हाँ. So this is the month, like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक साल, और फिर ये रिपीट अगले साल के लिए. तो दिस इज द ईयर विच इज डिपिक्टिंग डेट. चलो मैं तुमको बताता हूँ, डेट नहीं थी इसमें, आई इंक्लूडेड इट. तो डेट कैसे लगाना है वो बताता हूँ. जनरली डेट ऐसे गिवन नहीं होगा हम लोगों को. तो ये 19 20 21 3 साल का हमारे पास है यूएस का डेटा, फिर 3 साल का कनाडा का डेटा, और फिर 3 साल मैक्सिको का डेटा. ठीक है. और फिर ये ब्राजील का डेटा लास्ट. ठीक है. तो ये चार कंट्रीज का डेटा हमारे पास है, और एक ये है. फिर अगर हमको you'll have to put the date. तो what is the formula for putting a date? Is equals to date. Simple date function you'll have to ठीक है, you'll have to insert a date function. तो it would ask you for year, month and day. So for year, we have the year with us. This is the year. Month, this is the first month. Okay, and day is like first day. So this is the date we got. It is January 1st or January 1st, 2019. But what we have to do, generally data given to us is like for the end of the month. So we will have the end of the month date with us. So we will just put a formula EO, end of month. Okay. So start date is, this is the start date for us, and this is the month. So 0 month se start karenge. So we'll have the dates with us. See. So now this is the for month ending, January ending like 31st, then 28, February 30, February, March is like 31. So this is how we calculate it. I'll just delete it. I show it to you. Okay. So now what we have to do, we have to find the trend analysis for the revenue in US dollar. So revenue is like, this is our revenue. This is our revenue. Okay. So simple formula, what we have to do, we have to put in is equals to sum if formula. Okay. So first of all, what it is asking, it is asking the range. So where is our range? The range is in database sheet. ठीक है. तो रेंज में हमारा डेटा, ये स्कूल कहाँ से आ गया? रेंज में हमारा डेटा शीट, सॉरी डेटाबेस पे हम लोग गए, और इसमें अगर हम कॉलम डी देखेंगे तो हमारा रेंज सबसे पहले क्या है, कॉलम डी इन द डेटाबेस शीट. सो दिस इज आवर रेंज विच इज शोइंग द डेट. आई जस्ट फिक्स इट. ठीक है. उसके बाद व्हाट इट इज आस्किंग, इट इज आस्किंग अबाउट द क्राइटेरिया. तो व्हाट इज आवर क्राइटेरिया? Our criteria is the date in the trend analysis. So this is the date in the trend analysis.
ठीक है, I'll fix this also. Oh God. Yeah. So what next? This is asking for a sum range. Where is our sum range? Our sum range is in the database and revenue column. This is what we are supposed to find out. This is the column. Got it? You got the formula? I hope you got it. I'll just hit enter. So this is the revenue for the month of 19. For the month of January. Okay. And what is this COGS? This is our cost of goods sold. So what we have to do, we'll have to see cost of goods. हमने लिया revenue. Revenue is in F. Cost of goods sold is like this is in the G column. So we'll just change it. I'll just copy it, paste it here. तो हमको क्या करना है? Just give me a minute. Hello. घर हूँ, क्लास चल रहा है. तो हाँ, रेवेन्यू वाज इन F और अब हमको लेना है G. तो so this is our cost of goods sold. ठीक है, हमने बस ये चेंज कर दिया तो हमारा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया. ठीक है, तो दिस इज माइनस. सो इसको एलिमिनेट करने के लिए विल पुट अ माइनस करूंगा तो हमारा पॉजिटिव में रिजल्ट आ जाएगा. और यू विल जस्ट ड्रैग इट टिल द एंड. सो वी गॉट दिस ट्रेंड एनालिसिस. वी कैन सी द ट्रेंड. ठीक है, अगर अब इसको हमको ट्रेंड को अगर हमको विजुअलाइज करना है तो इंसर्ट में जाके वो टेबल जो मैंने तुमको मतलब पूरा दिन परसों बताया था वही टेबल है. अगर हम इसमें लाइन ग्राफ लगा लेते हैं 2D लाइन, दिस इज बेटर. सी, सो नाउ वी कैन हैव दिस चार्ट विद अस फॉर लाइक रेवेन्यूज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब इसका फॉर्मेटिंग तो मैं तुमको बता चुका हूँ. आई होप यू नो हाउ टू डू इट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेवेन्यू, स्पेलिंग रॉन्ग है लेकिन चल जाएगा, रेवेन्यू ट्रेंड्स एनालिसिस for like 2019 to 2021, something like this, or whatever you do. You have a lot of formatting available with you. You can go ahead with whatever you want to change into it. So this is how generally we use trend analysis. I hope you got it, and you are not replying, so I am presuming that you got it. So this is our trend analysis. And now we have a different sort of analysis with us in Excel, which is we called as comparative analysis. So comparative analysis is the process of comparing items to one another. अभी हमने इसको completely किया था. अब हम अगर एक को दूसरे के comparison में करना चाहते हैं compare, then we have to follow the comparative analysis. When a business wants to analyze an idea, problem, theory, or questions, conducting a comparative analysis allows to better understand the issue and form strategies in response. अगर किसी कंपनी को अपने डेटा को एनालाइज करना है, कोई प्रॉब्लम है उसको दे वांट टू एनालाइज, कोई थ्योरी है जिसको वो देखना चाहते हैं कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, कोई क्वेश्चन है जिसका वो आंसर चाहते हैं, इन दैट दे विल डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस. A business might conduct this type of analysis to analyze things which obvious difference or items with both differences and commonalities. तो दो चीजों को हम कंपेयर करके we'll try to find the similarities among it and the differences. अगर हम दो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे दो लोगों को कंपेयर करना है, दो स्टूडेंट्स को, तो दोनों में व्हाट आर द गुड थिंग्स और व्हाट आर द बैड थिंग्स, तो उनके बेसिस पर आई विल डू अ कंपैरिजन. तो हेल्थ केयर बिजनेस फॉर एग्जांपल may conduct this analysis to compare and contrast different types of मेडिकेशंस को हमको अगर कंपेयर करना है हेल्थ केयर बिजनेस में, तो उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है. अदर बिजनेस में कंडक्ट कंपैरेटिव एनालिसिस टू एग्जामिन टू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस. मतलब एक चीज को प्रोड्यूस करने के अगर
बहुत सारे मतलब दो अगर तरीके हैं उसको प्रोडक्ट करने के, तो दे कैन कंपेयर, दे कैन हैव अ कंपैरेटिव एनालिसिस in order to understand which one is suits the most or which one is more effective. Typically a business conducts a comparative analysis to determine, जो जनरली जो बिजनेस कंपैरेटिव एनालिसिस करता है वो क्यों करता है, वो इसलिए करता है तो द स्ट्रेटजीज ऑफ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, जो हमारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं या इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी स्ट्रेटजीज को जानने के लिए, द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस इंक्लूडिंग इट्स इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट मार्जिन, तो फाइनेंशियल हेल्थ को जानने के लिए करता है जिसमें इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मार्जिन जुड़े हुए हैं। अकाउंटिंग स्ट्रेटजीज जो है, बजट है, उनको कंपेयर कर सकता है। हाउ ट्रेंड्स अफेक्ट टारगेट ऑडियंस, कैसे ट्रेंड्स जो है हमारे वो टारगेट ऑडियंस को क्या वो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके लिए हम लोग कर सकते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और रिलेटेड फंक्शंस, तो जो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज हैं टेक्नोलॉजी में उनके लिए हमको कंपैरेटिव मार्केट ये एनालिसिस कर सकते हैं। तो व्हाई नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस। तो this is important because it's provide a framework for reference for data. तो अगर if we have a lot of data but we don't know what to do it, तो it will provide a frame of reference, एक reference point हमको मिल जाएगा from where we can compare it. A comparative analysis details how data or processes compare to one another, एक दूसरे के comparison में कैसे हैं, and it explains basically कि how they are related with one another. तो this provides context for the analysis ऑफ द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज, जो बताया मैंने तुमको उनमें आपस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं या क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, उनके रिलेशनशिप को जानने के लिए बेसिकली ये किया जाता है। इसकी एग्जांपल लिखा है बहुत सिंपल, एन ऑटो मैन्युफैक्चरर मे कंपेयर द सेफ्टी फीचर्स ऑफ 2 और मोर मॉडल्स टू डिटरमाइन हाउ दे अफेक्ट सेल्स। तो 2 मॉडल हैं, उनके सेफ्टी फीचर्स को वो कंपेयर कर सकता है और उस पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेल्स पे हमारी क्या इफेक्ट हो रहा है और विच फीचर्स रिक्वायर इंप्रूवमेंट, और उनके बेसिस उनके कंपैरिजन के बेसिस पर वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि कौन से फीचर्स को ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। This type of analysis might provide in-depth data on each feature and provide historical data to make comparisons about how each feature performed. तो अगर हम इनके सारे फीचर्स को एक दूसरे से कंपेयर कर लेंगे तो फिर वो हमारे पास एक हिस्टोरिकल डेटा आ जाएगा और वी कैन मेक इजी कंपैरिजंस अमंग इट। और सेकंड जो इसका इम्पोर्टेंस है कंपैरेटिव एनालिसिस का, वो नैरोइंग फोकस है। मतलब जनरली कंपनीज हैव बिग विजन्स, तो अगर हमारे पास कुछ डेटा होगा और हम उसे कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे तो हमारे फोकस को वो थोड़ा नैरो डाउन कर देगा। So this is the effective comparative analysis as it also helps a company develop substantial and meaningful reasons for conducting a comparison. The data a company gathers for a comparative analysis that supports claim or argument is not random but thoroughly research evidence. तो अगर किसी कंपनी ने कोई डेटा कलेक्ट किया है कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए, तो वो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ फर्जी डेटा उठा के रख दिया हो और रैंडमली कुछ भी दे दिया हो, बल्कि एक थॉरो प्रोसेस रिसर्च एविडेंस है विच कैन बी यूज्ड for comparative analysis. The reason for conducting analysis might be present conflicting arguments. कुछ अगर दो arguments conflicting argument हैं, उनको analyze करने के लिए भी किया जा सकता है। Both sides can prove or disapprove an argument. कोई argument है उसको prove या disapprove करने के लिए भी use किया जाता है। For example, वही वाला continuation में an auto manufacturer's analysis might prove that certain safety features prompt an increase. तो इसके एनालिसिस कंपैरेटिव एनालिसिस ने बताया कि कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से एकदम प्रॉम्प्ट इंक्रीज हो जाता है सेल में, एकदम से सेल बढ़ जा रही है ऑटो सेल्स। द एनालिसिस प्रोवाइड्स एंड कंफर्म्स डेटा दैट हाइलाइट्स हाउ साइड एयरबैग्स आर मोर पॉपुलर फीचर देन ट्रैक्शन कंट्रोल। तो ये एनालिसिस हमको प्रोवाइड करती है डेटा के थ्रू कि कैसे एयरबैग्स जो लगे हुए हैं उसमें वो ज्यादा पॉपुलर फीचर है देन ट्रैक्शन कंट्रोल से। This allows a manufacturer to focus on improving and promoting the features customers want when they buying a car. तो फिर अगर उनमें फॉर एग्जांपल जैसे एक कार में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो हमने सारे फंक्शंस को, सारे फीचर्स को आपस में ये किया, कंपैरेटिव एनालिसिस किया। तो बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस हमको पता चला कि these are the some attributes or functions
which customers want in their cars, तो फिर company can promote it that way. For example, अगर तुमने देखा ही होगा कि लोगों को लगता है कि माइलेज अच्छा होना चाहिए, तो फिर कुछ कंपनीज जो हैं कुछ मॉडल्स को अपने माइलेज को फोकस करके बेचती हैं. कुछ कुछ लोगों को लगता है कि उनकी कार बहुत पावरफुल होना चाहिए, इन द सेंस कि मतलब स्पीड बहुत तेज होना चाहिए, जरा सा एक्सीलेटर देने पर बहुत तेज चलना चाहिए, तो फिर वो कंपनी अपने मॉडल्स को उस तरीके से हाईलाइट करती है. तो तुम देख ही सकते हो. तो कोरिलेशन अभी हम पढ़ेंगे, उससे पहले विल ट्राई टू ट्रेंड एनालिसिस तो हो गया. कंपैरेटिव एनालिसिस का मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे होता है. दिस इज द ट्रेंड एनालिसिस वी डिड. दिस इज द कंपैरेटिव एनालिसिस. सो कंपैरेटिव एनालिसिस हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं एक सॉरी, here is the same, like we are calculating only 2020 2020 2020 for this, but now what we are doing, we are comparing the 4 markets. ठीक है, मैंने तुमको डेटा शीट में दिखाया था यूएसए, कनाडा, मैक्सिको एंड ब्राजील, these are the 4 markets हैं. तो इनका हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? वी आर कंपेयरिंग द रेवेन्यूज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज. ठीक है, तो मतलब दीज आर द स्टेप्स. मैं तुमको थोड़ा जल्दी दिखा देता हूँ अगर तुम जानना चाह रहे हो. तो हम सबसे पहले पुट सम इफ फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं. ठीक है, सम इफ फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम. ठीक है, और तुमको मैं बता दूं कैसे हम लोग लगा रहे हैं इसमें फॉर्मूला. ला ला ला, हाँ ठीक है. तो इज इक्वल्स टू सम इफ्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट इज आस्किंग, इट इज आस्किंग अबाउट द sum range. So what is our sum range? So sum range is in database. I'll go to the database. This is our database. Okay, and what we are watching, what we have to see is the revenue. So this is our sum range. Okay, I hope you are following what I am talking. I'll fix it. This is our sum range. Now what it is asking, it is asking about the criteria range. So what is our criteria range? Criteria range is in what I told, database revenue. Okay, so yeah, this is the year. This is the year in the database. This is our year. I'll just fix it. I have fixed it. Now again, what it is asking about the criteria first. What is our first criteria? Our criteria is like comparative analysis. This is our criteria. We want to look into the year, look through the year 2020. Okay, I'll fix it. And then what is our second criteria for this is the what should I look for is USA. Okay, comparative analysis of USA. ठीक है, just fix it and hit enter. I hope I made a mistake in here, I guess. Entered too few argument for this function. Okay, I'll try to do it again. Sum if is like too complicated. So yeah, sum ifs हम इसको दोबारा try करने की कोशिश कर सकते हैं. So first of all, what it is asking about the sum range of it. Okay, sum range is the revenue in our database. So this is our database, and this is the revenue, and this is the fixed. This is the sum range. I got it. And then criteria range. Criteria range 1 is the year in the database. Year in the database. I'll fix it. This is fixed now. And then what we are looking for? We are looking for 2020. I'll fix it. अगर अभी नहीं आया तो फिर I'll have to look into it.
and fix it. The formula is the same, I guess. Yeah. Certain problem is here. I'll just check it down. This is what we were doing. चलो देखते हैं अभी. This is the formula for us. I'm on mess out here. Yeah. See, this is the formula. I'll just check कि कहाँ पे गलती हो रहा है. ठीक है. So you keep an eye on it and I'll just show it to you. So we'll have to use sum ifs. ठीक है. What is our sum range? Sum range is database and F. Database and F. This is what we were doing. ठीक है. And criteria range is database C. The year, we are taking this also correctly. Okay, and what is our criteria? Comparative criteria is like the year. Oh, I was just okay. Cell references. I'll have to check this. Yeah, cell references. You should not have to fixed all the cells, but the column reference only, and then now it will be okay. I hope. Okay, database. Country, actually we were forgetting the country part of it. I'll just fix it. There are too many criterias are there. That is why we are using a sum ifs formula. And then this is the ठीक है. So I hope this will work now. Can I explain to you? Yeah, thankfully. So what we have to do, तो हमको पता है क्या, sum if सबसे पहले यूज करना था और sum ifs में हमको डेटाबेस F यूज करना था. तो डेटाबेस F का मतलब है हमको सबसे पहले रेवेन्यू देखना था. रेवेन्यू और किस ईयर में रेवेन्यू हो रहा है वो देखना था. तो रेवेन्यू हमने लगाया, किस ईयर में था वो लगाया. तो दो चीज हमारे पास आ गई. रेवेन्यू आ गया, किस ईयर में था वो लगाया. फिर कंपैरेटिव एनालिसिस हमने लगा की शीट से हमने क्या लगाया, C3 के क्या देखना था हमको, किस अपना ईयर का जो क्राइटेरिया हमने सेट किया था वो देखना था. और फिर उसके बाद हमको क्या करना था, कंट्री देखना था, क्योंकि हम कंट्री स्पेसिफिक है ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएसए ओनली. तो हमने ये सेल रेंज को किया और फिर उसको हमने जो यूएस था उसके साथ ब्लॉक कर दिया. तो अब तुम देखो, वही सेम रिपीट इसमें भी हमको करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारा जो रेवेन्यू है वो कहाँ है, एफ पे है, और हमको कॉग्स निकालना है जो कि जी पे है. तो हम यहाँ एफ को कन्वर्ट कर देंगे जी पे. एफ कहाँ है, ये है. आई जस्ट पुट जी और जी और आई हिट एंटर. तो ये आ जाएगा. वही माइनस हटाने के लिए सिंपल माइनस लगा दो, तो आई गेट द आंसर्स इन पॉजिटिव. ठीक है. और फिर इसको अगर हम इधर ड्रैग करेंगे तो विल गेट द प्रॉफिट फॉर रेवेन्यू फॉर यूएसए, कनाडा, मैक्सिको एंड ब्राजील, एंड फॉर द ईयर 2020 एंड 2020 सॉरी ये रेवेन्यूज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आ जाएगा. फिर ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एनीवन?
अब हम इसको सम माइनस होता है, लेकिन हमारे उसके पहले से ही माइनस में था, तो विल पुट अ सम साइन एंड दिस वुड बी आवर ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, एंड देन व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हम डिवाइड कर देंगे अपने रेवेन्यूज से, तो वी विल गेट अ ये. So this is the gross profit. See. Hello. Just give me a minute. Yes, sir. Yeah, sorry for this little interruption. I hope you got it now. आया कंपैरेटिव एनालिसिस समझ में? बोलोगे नहीं? ठीक है जी. तो दिस इज हाउ एक्चुअली वी डू थिंग्स. जब हमको अब फॉर एग्जांपल हमको इसमें 4 चीजों को कंपेयर करना था, 4 कंट्रीज को, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको एंड ब्राजील. तो इनका अगर हमको रेवेन्यूज और कॉग्स को कंपेयर करना है, तो वी कैन डू इट लाइक दिस वे ओनली. If you want me to repeat the formula also, this is the formula. This will come with the practice. तो अगर तुम करोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे हमको लेना है. फिर भी अगर देखना हो तो मैं तुमको बता सकता हूँ कि सबसे पहले हमको डेटाबेस जो हमारा तैयार है, जो मैं तुमको डेटाबेस दिखाया, इसमें से सबसे पहले हमको क्या देखना है, पहले ये देखो. सबसे पहले हमको रेवेन्यू निकालना है इसका. ठीक है, तो हम सबसे पहले रेवेन्यू को शीट को सेलेक्ट करेंगे और उसको हम फ्रीज कर देंगे, उसके सेल रेफरेंसेस को. उसके बाद हम रेवेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू द ईयर चाहिए हमको ना. देखो ना, दिस इज द रेवेन्यू एंड विद रिस्पेक्ट टू द ईयर के हिसाब से चाहिए 2020 का. फिर हम अपने ईयर को ले लेंगे, ठीक है, और उसको फ्रीज कर देंगे. उसके बाद जब हमने इसके सेल रेफरेंस को फ्रीज कर दिया, फिर हम वापस अपनी शीट में आएंगे और हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था इस ईयर के कंपैरिजन में. ठीक है, तो हम उसको फ्रीज कर देंगे. फिर हम डेटाबेस में वापस जाएंगे और हमको देखना है कि किस कंट्री का हमको चाहिए ना. हाँ, तो कंट्री, फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फ्रीज कर देंगे और कंपैरेटिव एनालिसिस पर आएंगे. और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो कंट्री का हमको चाहिए, यूएस का चाहिए, तो उसको लेकर हम उसको फ्रीज कर देंगे और फिर हिट एंटर करेंगे. ये आ जाएगा. इसको ड्रैग कर देंगे तो इनके आंसर्स आ जाएंगे. ठीक है, फोन क्यों आते हैं यार. हाँ ठीक है, तो ये कॉक्स आ जाएगा. नेगेटिव में थे, हमने इसको पॉजिटिव में कर लिया. अगर तुम उसको ऐसा रहने दे सकते हो तो अब भी ऐसे देख सकते हो. कोई दिक्कत की बात नहीं है. और इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. देखो हमारा कितना हुआ. तो हम मतलब वी कैन इजीली इन्फर कि ब्राजील जो है ना इज नॉट डूइंग गुड एंड यूएसए इज डूइंग द बेस्ट. ठीक है, और इसका परसेंटेज के हिसाब से भी हम इजीली कर सकते हैं कंफर्म. आई होप यू गॉट इट. और तुम्हारी खामोशी मेरे लिए हाँ ही है. Yes, sir.
ठीक है. सो कंटिन्यूइंग फर्दर, नाउ द कोरिलेशन एनालिसिस. कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है कि जिसमें, ओ गॉड, वैल्यू बेस्ड नहीं बोला, हाँ ठीक है. कोरिलेशन एनालिसिस, गिवन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल होते हैं, वन और मोर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, वी कैन मेजर द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ देयर लीनियर एसोसिएशन यूजिंग कोरिलेशन एनालिसिस. तो जैसे अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, जैसे हम अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैं ये बोल रहा हूं कि एक तरफ हमको दिया हुआ है सेल्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, टोटल सेल्स हमको दिया हुआ है, और दूसरी तरफ दिया हुआ है हमको कोई और डेटा. फॉर एग्जांपल, चलो अभी बताता हूँ, रुक जाओ. तो कोरिलेशन ऑफ वन इंडिकेट्स अ परफेक्ट लीनियर. अगर आंसर मतलब एक आ रहा है, दो अगर हम दो वेरिएबल को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तो इफ वी आर गेटिंग वन, तो इट इंडिकेट्स अ परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप, कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोरिलेट करते हैं, ठीक है. और वाइल अ कोरिलेशन ऑफ -1 implies परफेक्टली नेगेटिव लीनियर. अगर -1 आ रहा है तो कि एक दूसरे में आपस में कोई भी मेलजोल नहीं है और एक दूसरे के खिलाफ हैं. और 0 जो दिखाता है वो बताता है कि नो एसोसिएशन, आपस में कोई एसोसिएशन नहीं है और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ठीक है. कोरिलेशन एनालिसिस इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द फील्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बहुत यूज किया जाता है. Some practical applications include but not limited to, तो कुछ ये हैं जहां पे इस्तेमाल करते हैं. Assessing the relationship between inflation, money supply and stock returns. अगर हमको इनमें रिलेशनशिप निकालनी हो, कितना इन्फ्लेशन हो रहा है तो कितना मनी सप्लाई है, तो कितना स्टॉक हमारा वापस आ रहा है, तो ये रिलेशनशिप निकालने के लिए हम वी कैन यूज लाइक कोरिलेशन, ठीक है. और फिर determine the impact of including different assets class in our portfolio on return and risk. तो रिटर्न रिस्क बेसिस पर जो हमारे पास डिफरेंट एसेट्स हैं, एसेट्स की क्लास हैं, उनका हम एक दूसरे से कोरिलेशन निकाल सकते हैं. क्वांटिफाइंग द बेनिफिट्स इन्वेस्टिंग इन फॉरेन इमर्जिंग मार्केट्स. तो फॉरेन मार्केट्स में और या इमर्जिंग मार्केट में अगर हमको कहाँ पर ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उनका कोरिलेशन निकाल सकते हैं कि वेदर फॉरेन मार्केट और इमर्जिंग मार्केट्स में कुछ डिफरेंस है या नहीं है, मतलब कितना कोरिलेशन है आपस में. एनालाइजिंग कोरिलेशन बिटवीन एक्सचेंज रेट्स अगर दो के हैं तो उनका हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं कि एक दूसरे से कितना डिपेंड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर टाटा के दो तरीके के स्टॉक्स हैं हमारे पास, तो हम देख सकते हैं कि दोनों में कुछ रिलेशन है, कि एक की वजह से दूसरा गिर रहा हो या दूसरे की वजह से पहला उठ रहा हो, इस तरीके से. गॉगिंग द रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इनकम और कैश फ्लो में हम लोग ये कर सकते हैं. सो हाउ डू वी मेजर कोरिलेशन. अगर हम पेन और पेपर की बात करें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इफ वी हैव अ पेयर ऑफ डेटा, अगर हमारे पास दो डेटा सीरीज दिया रखा है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का. आई होप यू नो व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो वी कैन कंप्यूट द कोरिलेशन बिटवीन यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है. कैलकुलेट द मीन निकाल लेंगे हम दोनों का, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेंगे. ये तुमको खैर करना नहीं है, बस मैं ऐसे ही तुमको एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के लिए बता रहा हूँ. डिटरमाइन द डेटा सीरीज, कोवेरिएंस निकाल लेंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे. तो फॉर एग्जांपल ये एक इलस्ट्रेशन है, इफ यू कैन सी थ्रू इट. assume we have the following data series for two variables. दो वेरिएबल्स है, इक्विटी इंडेक्स और स्टॉक XYZ, ठीक है. दे रिप्रेजेंट ईच वेरिएबल्स रिटर्न परसेंटेज इन 6 मंथ का इन्होंने ये परसेंटेज ऑफ रिटर्न दे रखा है. 6 महीने का हमारा मतलब सैंपल साइज जो हमारा 6 महीने का. तो अगर हमने इसका एनालिसिस करके निकाला तो 0.96 आ रहा है. तो व्हाट डज दिस 0.96 मींस? इट इज समवेयर अराउंड टू 1, ठीक है, 1 के आसपास है. तो ये शो कर रहा है, यहाँ पे देखो लिख रहा था, एक इंडिकेट्स अ परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप, कि हाँ दोनों में बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, मतलब एक की वजह से दूसरा डिपेंडेबल है, ठीक है. ठीक है. लिमिटेशंस ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस क्या है? सर्टेन फंक्शंस, ठीक है, लिमिटेशंस की तुमको ना जरूरत नहीं है. We can skip this part. I'll show you how to do it in the Excel. Comparative value with correlation. कहीं दिखा दूं क्या? फोर में दिया है क्या? बहुत सिंपल फंक्शन है ये निकालने का. इसमें डेटा नहीं दिया, इसी में मैं तुमको दिखा देता हूँ. It is done. So correlation हमको देखो US रेवेन्यू और एडवर्टाइजिंग
कुछ तो हो रहा है यार, बहुत ये हो रहा है यहाँ पे फायर क्रैकर्स। ठीक है, यूएसए रेवेन्यू और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर एक कंपनी एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट कर रही है पैसा, तो उसका इम्पैक्ट उसके क्या बोलेंगे हम इसको, उसका इम्पैक्ट रेवेन्यू पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग। और दूसरा, स्टाफ कॉस्ट को, जो हम जितना हम स्टाफ को कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो उसका रेवेन्यू पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर तीसरा डेटा है हमारे पास एम्प्लॉय इंगेजमेंट। तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट का कुछ कोरिलेशन है रेवेन्यू से या नहीं है। ठीक है, और वेबसाइट ट्रैफिक और रेवेन्यू, अगर वेबसाइट ट्रैफिक हमारा बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, ऐसा है या नहीं है। ये पता करने के लिए हमको बेसिकली करना होता है अपना ये, विल हैव टू फाइंड आउट द कोरिलेशन। तो सिंपल फॉर्मूला है इसका, नीचे वाले पे मैं लगा देता हूँ, इसी को भी लगा सकते हैं, नीचे लगा देता हूँ, इज इक्वल्स टू कोरेल, यानी कि कोरिलेशन एरे 1 कॉमा एरे 2, पूरे एरे का लेना है। हाँ, सी सो इसको हम कम, इसके बढ़ा के 0 कम कर लिया, तो इसका कोरिलेशन हमारा 0.55 दिखा रहा है। ठीक है, सो मतलब ये ना तो नेगेटिव है कि नेगेटिव का मतलब देखो, फिर मैं तुमको दिखा दूं एक बार टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस बेटर, कि कोरिलेशन का तुमको ज्यादा यूज आ सकता है। नेगेटिव होता तो दिखाता है कि बिल्कुल भी आपस में ये कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, 0 पे नहीं दिखा रहा है कि नहीं है रिलेशनशिप, कुछ भी नहीं है, और उल्टी भी नहीं है। तो ये हमको दिखा रहा है कितना है, 0.5 है, मतलब तो एक परफेक्ट होता है, लेकिन 5 है तो मतलब ठीक ठाक है, इस तरह से है। ठीक है, तो क्या हो गया, सो ये देखो, अगर तुम सबका देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब इस मंथ में एडवर्टाइजिंग स्पेंड और रेवेन्यू पे हमारा वो नहीं है, कोरिलेशन नहीं है। उसके अलावा हमारा कोरिलेशन है। ठीक है, और नो एसोसिएशन 0 तो एग्जैक्टली किसी का है नहीं, तो हम इसको तो छोड़ सकते हैं। अरे यार बहुत शोर हो रहा है। ठीक है, तो मतलब सिंपल है, ऐसे ही हम इसका उठा के देख लेंगे, इसका तुम करके देख लो। देखो मतलब हर महीने में ऑलमोस्ट अच्छा ही कोरिलेशन है, और ऐसे ही इसका 0.7, तो हाईएस्ट कोरिलेशन जो दिखा रहा है वो वेबसाइट ट्रैफिक का दिखा रहा है। तो मतलब जितने लोग अगर हमारी वेबसाइट पे ज्यादा आएंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा। ये सिंपल बात भी है, क्लियर भी है, समझ में भी आता है। ठीक है, और 30 को देखोगे तुम तो परफेक्ट कोरिलेशन है 1। ठीक है, और 1 क्या शो करता है, 1 शो करता है कि देयर इज अ डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। फिर मैं कल तुमको, या जब भी सेशन लगेगा, तो उसके बाद थोड़ा सा पार्ट रह गया इसका, 1-2 चीज और हैं, जैसे ये है टाइम सीरीज एनालिसिस और रिग्रेशन। ये 2 चीज आई कवर इट इन द सेकंड क्लास। आई होप you enjoyed today's session and you learned something out of it. Okay, can I close this now? Hello, so I'll close it down. Thank you so much for being a wonderful audience to me. Yeah, thank you. Bye bye, take care.